ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام تریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم آج اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خدا ان کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئیں ہم تھوڑی دیر کی خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور گزرے ہفتے میں، گزرے دنوں میں جو کچھ خدا نے ہمیں بخشا ہے، ہم ان سب کی مل کر شکر گزاری کریں اور خدا کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکے۔ ہم سب مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح کو اس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ اور مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس میرا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے اور ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ خداوند کی حمد و تعظیم کریں گے۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب زبور نمبر 18 گائیں گے۔
مسز کینتھ آپ دعا میں رہنمائی کریں چند الفاظ میں آج کے دن کے لیے۔ آسمان اور زمین کے خالق و خالق سے کا جلال اسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید، تیری ستائش کرتی ہوں آج کے دن کے لیے، زندگی جیسی نعمت کے لیے، ہم سب کی سلامتی کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں اور محنت کرتی ہوں خداوند آج جب کہ مدرس ڈے ہے تمام ماؤں کو خداوند کو دنیا کی ماؤں کو تیری سلامتی میں دیتی ہوں خداوند کو اپنے خاندانوں میں صحیح سلامتی سے زندگی گزارے اپنے بچوں میں خداوند صحیح سلامتی سے زندگی خوشیوں کے ساتھ گزارے اور خداوند آج کی ساری عبادت کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتی ہوں شروع سے لے کر آخر تک تم ہماری مدد کرنا گانے بجانے والوں کے لیے کوائر کے لیے تیری پاک محاذت میں دیتی ہوں خداوند جبکہ خداوند کو اپنے پاک روح کا مسا دے کر انہیں استعمال کرنا اور خداوند گانا بجانا تیرے حضور مقبول کی مانت پہنچے اور آج کا کلام جو ہماری زندگیوں کے لیے ہو ہماری زندگیوں کی تبدیلی کا باعث بنے اور خداوند تیرے خادم کو بھی تیرے پاک ہاتھوں میں دیتی ہوں خداوند اپنا روح کا دونا مسا دے کر استعمال کرنا اور ساری عبادت میں تم ہمیں سنبھالنا شروع سے لے کر آخر تک تم ہمارے ساتھ رہنا مانگتے تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خدا ان کی مدد سرائی میں گیت نمبر 372 372 تیری رحمت ابدی ہے تیرا پیار نرالا ہے۔ تھینک یو پادری اسکیل نے یہ گیت لکھا۔
और दुआ मांगें कि मैं और आप हमेशा एक दूसरे के लिए बरकत का सबब ठहरें। 2 दिन पहले एक जगह मैं गया और डॉक्टर साहब थे, मुस्लिम दोस्त हैं हमारे, क्लिनिक है उनका। आती दफ़ा उन्होंने मुझसे ये दरख्वास्त की कि पादी साहब इस क्लिनिक के लिए दुआ करके जाएं, ख़ास तौर पर हासदों के लिए। हासद जो हसद करते हैं, हाँ हमारे दरमियान भी बड़े लोग हैं हसद करने वाले, छोटी छोटी बातों पे करते हैं। मैंने उस डॉक्टर से ये सीखी है बात कि हर दुआ में हासदों के लिए दुआ करनी है, ताकि वो हसद करने की बजाय खुश हों दूसरों की तरक्की के लिए, दूसरों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, और उन वसाइल के लिए जो खुदा उन्हें देता है, ताकि मुझे और आपको भी खुदा ये वसाइल अता फरमाए। दुआ मांगे। आज चूँकि ख़वातीन का दिन है, परवीन अमीन आप दुआ में रहनुमाई करें। आज के सुहाने दिन के लिए खुदावन, जबकि तुमने रात भर हमारे पास मिलवाने की खूबसूरत दिन बख्श दिया, सुबह रोशनी दी, हमारी जिंदगी का एक और दिन बढ़ा दिया। खुदावन इस दिन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। खुदावन तमाम नेक बच्चों के लिए, जिंदगी से इस्लाम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावन जितनी जाने हमारी है, खुदावन एक एक के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावन तुमने बार बार मौका बख्शना है कि तेरे हज़ूर में आए, झुके और तुझे सजदा करें और तेरे सदा मकलाम की बातें सुने और आज भी इसका अमल करने वाले बन जाए। खुदावन मेरे लोग मजबूर हैं, खुदावन इन सब के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जो तेरे घर में आना चाह रहे हैं। खुदावन इन सब के लिए भी मैं खैर करती हूँ, ताकि सब मिलकर खुदावन तेरे नाम को बढ़ाते हुए, खुदावन तेरे करते हुए, तेरे हज़ूर में जुटते हुए खुदावन तेरे घर में आए। खुदावन तेरे बच्चों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करे। खुदावन तूने मांगे बहु सी नेमतों से नवाज रखा है, आप तेरा शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए जो एक खास दिन है। खुदावन जबकि तुमने खुदावन और बहुत बड़ी हिम्मत ताकत अता कर रखी है। खुदावन हमें बड़ा फजल बख्श, ताकि हम तेरे कलाम के मुताबिक खुदावन और सच्चाई से चलते हुए खुदावन तेरे कलाम की बातों पर अमल करते हुए अपने खानदानों में अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने वाली हूँ। सब माओं के लिए तुम्हें खैर करती हूँ। खुदावन जो इस दुनिया से जा चुकी हैं, खुदावन उनके बच्चों के लिए तसल्ली की नाम मांगती हूँ। खुदावन हमें अकल और दनाई अता कर, हम अपने खानदानों में, अपने माशरा में, अपने करदार से खुदावन अपने बैठने से खुदावन जाहिर करें कि हम इसी खानदानों से तल्लुक़ रखती हैं। और खुदावन तो हमें सब हिम्मत ताकत अदा करने वाला बाप है। खुदावन आज का दिन खुदावन मुबारक दिन ठहरे, जहाँ कहीं भी तेरी इबादत हो रही है, तेरे नाम लोग इकट्ठे हैं। खुदावन तू सब जगह पर शामिल हाल रहना, अपना शफ़क़त अबरत वाला हाथ बढ़ाए रखना। यीशु नासरी आज का तेरा जिंदा पाक कलाम बहुत सी जिंदगियाँ बदलने वाला कलाम हो। खुदावन जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी दुआएं खैर करती हूँ। खुदावन उनके लिए खुदावन सेहत तंदुरुस्ती की दुआ करती हूँ। जो लोग सफ़र कर रहे हैं खुदावन उनके लिए भी दुआ करते हैं, मिन्नत करती हूँ। खुदावन आज के जिंदा पाक कलाम के लिए खुदावन आज तेरा बंदा जो भी बोले खुदावन तुझसे होकर बोले, आज का कलाम बहुत सी बरकत लाने वाला कलाम हो। खुदावन सब इंतजामिया के लिए दुआ करती हूँ, दुआएं के लिए दुआ करती हूँ। खुदावन सारी अपनी कलीसिया के लिए, बुजुर्गों के लिए दुआ करती हूँ। आज का दिन खुदावन हमें मुबारक करना। यीशु नासरी कोई भी हमसे गलतियाँ बताई हुई हैं तो खुदावन हमें माफ़ करना। खुदावन हमें भारी फजल अता करना, हम पर फजल करना और अपने रहमत फजल की नज़र हम सब पर किए रखना। यीशु नासरी आज की मीटिंग का सारा चार्ज तेरे पाक हाथों में देती हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारी बड़ी रहनुमाई करना। जो कुछ मैंने मांगा ईमान से मांगा पाया, मांगती हूँ सब कुछ तेरे मीठे प्यारे और मुजलाली नाम से, आमीन। आज सुबह हमारी नसीहत के लिए कलाम मुक़द्दस के 3 हिस्से हैं। आज का पहला विर्द, आपके सामने जो बाइबल है, बाइबल में सफ़ा नंबर 107 107 रसूलों के अमाल पहला बाब 6 आयत से 11वीं आयत। ये मिसेस शीबा दाऊद ये हवाला हमारे लिए पढ़ेंगी। आज का दूसरा विर्द सफ़ा नंबर 338 338 पहला यूहन्ना का ख़त 5वां बाब 9वीं आयत से 12वीं आयत, पेज 338
338 पहला यूहन्ना का ख़त 5वां बाब 9वीं आयत से 12वीं आयत। फिर हम स्पेशल एक गीत गाएंगे। आज का गीत है, क्वायर ने तैयार किया है, कितना मीठा है माँ तेरा नाम। फिर हम मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील का हवाला 24वां बाब 44वीं आयत से लेकर 53 आयत तक। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा, आए खुदावंद, क्या तो इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, आए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। खुदावंद का कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। आमीन। जिंदा और बाबरकत कलाम में जो लिखा है, जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही तो उससे बढ़कर है। और खुदा की गवाही ये है कि उसने अपने बेटे के हक़ में गवाही दी है। जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक़ में दी है ईमान नहीं लाया। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी और ये ज़िंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन।
हमारे लिए आज की तीसरी तिलावत मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 24वां बाब 44 आयत से 53 आयत तक। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफ़ों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझें और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूँगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी, और जब उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया, और वो उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। कलाम मुक़द्दस की तिलावत पर खुदा की बरकत हो। कुल अल्म से पेशतर अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी, वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और कुद्स की कुदरत से कमवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पलतुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामुजब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दहली दर बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तुत तज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। हम दुआ मांगें। मिसेस मुमताज़ गिल आप दुआ में रहनुमाई करें कलाम की। जो खुशी का मोहब्बत का इजहार है दुनिया की सारी माओं के लिए तेरा शुक्र सेंट जॉन्स के वक्त के लिए
दुआ करता है खुदा के सबको दूसरों के लिए मॉडल बना, यीशु नाम में जी। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह उसके नाम से तालियां। आप सब जाके खुदा बेटे और खुदा रूह उसके नाम से आमीन। तालियां करें। मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से, यहाँ बैठी तमाम माँ की मैं मदर्स डे की खुशियाँ पेश करती हूँ। खुदा यहाँ बैठी हर माँ के लिए, उनके बच्चों के लिए बरकत की दुआ मांगती हूँ। और आज मैं सारी माँ को ये एहसास दिलाना चाहती हूँ, हम माओ का अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में, परवरिश में बहुत बड़ा हाथ है। अगर एक माँ के 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चे ही तरह तरह के ख्यालात के मालिक हैं, तरह तरह की पसंद है, तरह तरह की चॉइस है। अगर घर में 2 बच्चे मौजूद हैं तो माँ को सुबह 2 तरह के नाश्ते बनाने पड़ते हैं। एक बच्चा कोई और नाश्ता मांगता है तो दूसरा और मांगता है। तो हम माएँ जो हैं बड़े सब्र और शुक्र के साथ अपने बच्चों की तरबियत करती हैं और बड़ी मेहनत के साथ, जज्बे के साथ ना सिर्फ घर में संभालती हैं बल्कि जॉब भी करती हैं। खुदा हम सब माओं को सेहत, तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे और अपने बच्चों के सर पर सलामत दे। और जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि अगर हम माएँ जो हैं ये सीख जाए कि हम 3 बातें ना करें। अभी पैसा ने बोली, शरारत के मंसूबे ना माने, किसी से हसद ना करें या चुगली ना करें अपने बच्चों के सामने, तो शायद हमारे बच्चों की तरबियत और अच्छे तरीके से हो सके। इसी तरह से जहाँ बैठे तमाम नर्सेस को भी मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ, जितनी बच्चियाँ नर्सेस बन रही हैं या जितनी मेरे जैसे रिटायर्ड नर्सेस भी बैठी हैं, उन सबको मैं नर्सेस डे मुबारक कहती हूँ। और नर्सेस का भी हमारे खानदानों में बहुत बड़ा रोल है। हम सब जानते हैं कि नर्सेस की वजह से हमारे खानदानों में जो स्टैंडर्ड है और जो मेहनतें हैं, खुदा का हाथ ऊपर से बड़ा हुआ है और आगे हम नर्सेस की मेहनत है कि हमारे बच्चे आज अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, ऑफिसर सीट्स पर बैठे हुए हैं, हम माओं की वजह से। बाप का भी बहुत बड़ा किरदार है, नो डाउट, लेकिन जो माँ का किरदार है वो डबल। बाप बाहर से कमा के लाते हैं और उनका काम काफ़ी हद तक खत्म हो जाता है। लेकिन माँ अगर बाहर से, जहाँ एक नर्स अगर बाहर से कमा के भी ले आती है तो घर आके भी उसकी जॉब खत्म नहीं होती। खुदा सबको बड़ी बरकत दे, नर्सेस को भी और माओं को भी। अब हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इससे शकीला इमानुएल को दावत दूंगी कि वो सामने आए ताकि हम उन्हें मदर्स डे की खुशियों में शरीक कर सकें। आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्वायर को भी ये जाती दफ़ा भी ये गीत गा लेना माँ वाला, ठीक है? बहुत अच्छा गाया आपने। आज के दिन के लिए भी हवाले जो पढ़े गए हैं खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के ताल्लुक से थे। अगला इतवार ईद पेंतिकोस्त। कितनी ईदें हमारी? वेरी गुड। इस साल में हमने ईद ज़हूर मनाया, फिर इसके बाद ईद क़यामत उल मसीह, फिर ईद सऊद आसमान पर उठाए जाने की ईद, और जो अगला इतवार है वो होगा
عید پینتیکوست۔ ہم ان عیدوں کے لیے، ان تہواروں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن آج کا جو دن ہے بڑا اہم دن ہے موجودہ حالات میں۔ آپ یہ میرے دونوں ساتھی ذرا آگے آ کے کھڑے ہو جائیں، شاباش۔ ویسے ہی کھڑا کرنے لگا ہوں ان کو میں۔ ایک ماڈل پیش کر رہا ہوں، آج ایک اپنا موبائل لے لے اور وہ کھیلتا رہے موبائل کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ بس ایسے ہی کھیلتے رہنا، دیکھتے رہنا، دوسرا کھڑا رہے۔ آج کے دور میں چھوٹی بات ہے، اس میں میسج بہت ہے، سن لیں ذرا۔ ماں اور بیٹا دونوں صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ گیلری والوں کو آواز آ رہی ہے؟ ماں اور بیٹا دونوں صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے گھر کے ڈرائنگ روم میں۔ بیٹا جو ہے وہ موبائل کے ساتھ گیم کھیل رہا تھا۔ عبید صاحب کھیلتے رہے آپ، ٹھیک ہے؟ موبائل کے ساتھ کھیل رہا تھا اور ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ غور سے سنیں۔ اور ماں اپنے ساتھ سے بیٹے کو کہہ رہی تھی کچھ کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، لیکن بیٹا اتنا مگن تھا اپنی گیم میں، موبائل میں اتنا مگن تھا کہ اس کی ماں نے اس کو کئی دفعہ ایسے ہاتھ لگایا اور وہ اپنی ماں کا ہاتھ ایسے جھٹک دیتا تھا کیونکہ وہ گیم پہ لگا ہوا تھا۔ 5 منٹ تک اس کی ماں اس کو ہاتھ لگاتی رہی کہ میری طبیعت خراب ہو گئی، بول نہیں رہی تھی، اس کو پتہ نہیں اندر کیا مشکل ہو گئی تھی یکدم۔ دی اینڈ بیٹا موبائل کے ساتھ کھیلتا رہا، ماں کی طبیعت بگڑ گئی، بیٹی کمرے سے نکل کے آئی۔ بیٹیاں بھی سن لیں ذرا بات۔ بیٹی کمرے سے نکل کے آئی ڈرائنگ روم کی طرف، تو اس نے ماں کو دیکھا کہ ماں اس طرح سے لیٹی ہوئی ہے، تو اس نے ماں کو دیکھا کہ وہ بول نہیں رہی۔ پھر بھائی کے ہاتھ سے اس نے موبائل چھینا اور کہا کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ پھر وہ ماں کی طرف اس نے دیکھا، لیکن اس کی ماں پرواز کر چکی تھی۔ 10-15 منٹ میں اگر وہ بیٹا پہلے ہی اپنی ماں کے ہاتھ کو دیکھتا کہ کوئی بات کرنا چاہتی ہیں تو شاید وہ ہاسپٹل میں جاتی تو بچ جاتی، گھر میں اس کو پانی پلا دیتے تو بچ جاتی۔ کس کی غلطی سے ماں مر گئی؟ بولے گیلری والے، کیونکہ بیٹا اتنا مصروف تھا موبائل میں۔ یہ موبائل آپ کا دشمن ہے، یہ موبائل گھر میں آپ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اس لیے پورا دھیان اس کی طرف نہ دیں۔ سارے بچے ایسے کرتے ہیں، ان کو آواز دے دیں کہ اگر موبائل پہ بیٹھے ہوں تو انہیں آواز جاتی نہیں ہے، تو اگر ان کو کام کو کہہ بھی دیں تو غصے سے پھر جواب دیتے ہیں۔ پچھلے اتوار میں نے کہا تھا نا کہ اس دور کے لوگوں میں وفا ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ زہر کی شیشی میں دوا ڈھونڈ رہا ہوں، زہر سے بھرے۔ یہ موبائل خاندانوں کو جدا کر رہا ہے۔ ماں اور بیٹا دیکھے اپنے بچے کو پیار بھی کرتی ہے، اس سے رشتہ بھی قائم ہوتا ہے اور آخری دم تک اس کو پیار کرتی رہتی ہے۔ بیٹیاں سن لیں، میرا موبائل دے دیں گے واپس۔ آپ ملاکی نبی کا صحیفہ نکالیں، متی سے پہلے ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ لڑکوں کے لیے میسج تھا، ماؤں کا دن منا رہے ہیں، غور سے سننی ہے اپنے باتیں۔ بیٹے، اے میرے بیٹے، اپنی ماں کو حقیر نہ جان۔ او ابھی تانوں کی پتہ تسی پرانے خیالات دے ہو، یہ چھوڑ دیں باتیں۔ بیٹیاں، ان دنوں میں بڑا ایک مشہور خبر ہے، آپ اور چیزیں تو دیکھتے رہتے ہیں لیکن جو نصیحت والی چیزیں ہیں نا وہ نہیں دیکھتے۔
मैसेज मेरा यही है आज। पिंकी फ्रांसिस, क्या नाम है? कई लोगों ने आप में से फेसबुक पे देखा होगा, मैं भी देखता हूँ फेसबुक। पिंकी फ्रांसिस क्रिश्चियन लड़की, उसकी शादी मुस्लिम लड़के से हुई। गौर से सुन लें, ये मेरे पास खबर है, मैं इसलिए मैंने अपना मोबाइल वापस लिया। पिंकी फ्रांसिस, निकाह चर्च में हो गया और लड़का मुस्लिम और लड़की। बाइबल मुक़द्दस का जो मैंने हवाला आपको निकाल के दिया, खोलें ज़रा, मैं भी पढ़ूंगा। ध्यान देना अपने इस बात पे कि इन दिनों में हमारे यहाँ क्या हो रहा है। कलाम मुक़द्दस में 11वीं आयत नोट कर लें सब लोग। लड़के मोबाइल की अहमियत को देख रहे हैं कि मोबाइल की वजह से अपनी माँ भी जा सकती है, तो कोई परवाह नहीं, मैंने मोबाइल ही खेलना है, गेम ही खेलनी है। बच्चे सुन लें, यहूदा ने, बाइबल की आयत है 11वीं, यहूदा ने बेवफाई की। इसराइल और यरूशलेम में मकरूह काम हुआ। यहूदा ने खुदावंद की कद्दूसियत को, जो उसको अजीज थी, बेहुरमत किया और एक गैर माबूद की बेटी ब्याह लाया। ना हमवार जुए में न जितो। आप जिंदगी में सुकून चाहते हैं, मैं भी, हम सब भी, लेकिन आज तक जितने लोगों ने, यहूदा ने भी गुनाह किया, कद्दूसियत को बेहुरमती कर दी। और खुदा के कलाम में यिर्मयाह में लिखा कि इसका गुनाह हीरे की, कभी नहीं सुना, हीरे की नोक से, जो कलम था उससे लिखा गया, ना मिटने वाला गुनाह। पिंकी फ्रांसिस पढ़ी लिखी, दुबई चली गई, मुस्लिम से शादी की। और फिर मैं आपको ये बताऊं, कभी भी अगर आप ना हमवार जीते, जुए में जीत जाएंगे, मतवाजन दोनों चीज़ें नहीं होंगी, एक मज़हब के नहीं होंगे, दो मज़हब के होंगे, तो कभी भी आप नॉर्मल ज़िंदगी बसर नहीं कर सकेंगे, सुकून नहीं होगा। जब खुदा औलाद दे देगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो अगर खुदा ना करे, अगर लड़की मुस्लिम है तो वो उसको मस्जिद की तरह भेजेगी, और अगर लड़का मसीही है तो वो उसको चर्च की तरह भेजेगा। तो दोनों को क्या होगा? क्या होगा? घर में लड़ाई होगी, बेसुकूनी होगी, इत्मीनान नहीं होगा, तसल्ली नहीं होगी, तरबियत भी ठीक नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नौजवान बेटियाँ सुन लें, ना हमवार जुए का मतलब ये है कि आप अनबैलेंस जगह पे जा रही हैं। बेटे भी सुन लें, बैलेंस में रहें। कई हमारी बस्तियों में आग पता क्यों लग जाती है? हमारे अपने लड़के दूसरे मज़हब की तरफ जाते होते हैं, तो वो फिर घर वालों को भी तंग करते हैं और आग भी लगा देते हैं और पूरी बस्ती जल जाती है। वजह क्या होती है? बोले ज़रा, मेरी बात गौर से सुन लें। आज का दिन ये माँ बाप की इज़्ज़त का मसला होता है। आप माँ बाप की इज़्ज़त बेच देते हैं, खा लड़का हो या लड़की, आप माँ बाप की इज़्ज़त बेच देते हैं अपनी खुशी के लिए, फिर आपको खुशी भी नहीं मिलती। मुश्किल ये है, या तो अपने इत्मीनान में हो, तसल्ली में हो, सुकून पाएँ। अब ये बात इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई है ये वाली, जिसके लिए हम सब परेशान हो गए। शादी चर्च में हो गई, लड़का मुस्लिम,
लड़की पिंकी फ्रांसिस क्रिश्चियन। फिर वो चले गए और फिर एक और निकाह पढ़ लिया उन्होंने, फिर मुस्लिम निकाह पढ़ लिया, क्योंकि उसने कहा नहीं। अब मुझे बताएं, मौजूदा हालात में जब मैं और आप माओ का दिन मनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। खुदावंद यीशु मसीह जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, जिसने मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान सलीब पर दे दी, मेरे और आपके सुकून के लिए, मेरे और आपके निजात के लिए, मेरी और आपकी मखलसी के लिए, फिर हम उसके नाम को रद्द कर दें। ये कलाम की बात कह रहा हूँ, फिर पढ़ना चाहता हूँ आयत, आपने दोबारा बार बार पढ़ना इसको। यहूदा ने बेवफाई की, इसराइल और यरूशलेम में मकरूह काम हुआ। यहूदा ने खुदावंद की कदूसियत को, जो उसको अजीज़ थी, बेहुरमत किया और एक गैर माबूद की बेटी को ब्याह लाया। हवाला निकाले पहला यूहन्ना, बस इसके बाद ख़त्म करूँगा। पहला यूहन्ना का ख़त, कलाम में जो हवाला आज मेरे लिए और आपके लिए पढ़ा गया, 9वीं आयत से 12वीं आयत, मैं 2 आयतें सिर्फ पढ़ूंगा, 11वीं और 12वीं। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी, और ये ज़िंदगी उसके बेटे में है। और ये ज़िंदगी उसके, कौन सी ज़िंदगी? मैं और आप जिस्मानी ज़िंदगी के लिए बहुत तगोदो करते हैं, जायज़ नाजायज़ काम करते हैं, सुकून फिर भी नहीं मिलता। तो खुदा के कलाम में लिखा है, गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी, और ये ज़िंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी। अगर मेरे पास और आपके पास खुदा का बेटा नहीं ना, तो ज़िंदगी भी नहीं है। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, मेरे एक दोस्त, इस्लामी दोस्त, उसने कहा कि अगर मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं, तो ये हमारा ईमान है। हम किसी की बेहुरमती तो नहीं ना कर रहे, हम तो अपने ईमान की बात कर रहे हैं कि वो खुदा का बेटा है। और उसकी गवाही कौन देता है? खुदा। अगर इंसानों की गवाही कबूल होती है तो खुदा की गवाही क्यों कबूल नहीं होती? जब हम आदमी की गवाही को कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही तो उससे कहीं बढ़कर है। और खुदा की गवाही यह है कि उसने अपने बेटे के हक़ में गवाही दी। जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता वो अपने आप में गवाही रखता है, और जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि वो उसकी गवाही जो खुदा ने अपने बेटे के हक़ में दी है ईमान नहीं लाया। एक शख्स ईमान ही नहीं लाया, खुदा की गवाही को नहीं माना कि ये मेरा बेटा है, इससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो, और फिर भी हम इनकार कर दें। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है आप सब जवान बच्चों से, माओं के दिन को दिल से मनाएं, खुशी से मनाएं, हिकमत के साथ, अकल के साथ। तू अपने माँ बाप का शिनवा हो, जो कुछ माँ बाप कहते हैं उसकी बात सुन, अपने बाप के फरमान को बजा ला, और अपनी माँ की तालीम को न छोड़, क्योंकि जो बाप का फरमान है वो चिराग है, रोशनी है, और जो माँ की तालीम है वो क्या है भाई? वो क्या है? वो रोशनी है। माँ की तालीम रोशनी, और बाप का फरमान चिराग। और रोशनी कहाँ से निकलती है? चिराग से निकलती है। मेरी ये दुआ है कि खुदा आप सबको आज के दिन कलाम की इन बातों के वसीले से बरकत दे। मर्द हजरात सुन ले, हम अगले महीने फादर्स डे भी मनाएंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, और वो हमारे लिए भी पैगाम होगा कि हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। माओं की तो बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। इसलिए वालिदैन से दरख्वास्त है कि आज के दौर में जो ख़वातीन हैं ज़रूर आया करें, कलाम सुना करें, सीखा करें, बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक किया करें। मेरी ये दुआ है कि खुदा हम सबको इस कलाम के वसीले से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आए हम दुआ मांगे, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें।
एक नई और जिंदा राह मखसूस की है जिससे हम तेरे फजल के तख्त के पास आ सकते हैं। गो कि हम नालायक हैं, फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं। बड़ी आजिज़ी और इनकी सारी हलीमी फ़रोतनी के साथ तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हम सबको, इन हदियों को, नजरानों को अपने ज़ुर कबूल फरमा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। सब चीज़ें तो तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी दी हुई चीज़ों में से हम तुझे लौटाते हैं। देने वालों को बरकत दे, इनके वसाइल में वसअत, इनकी रोटी पानी पर बरकत डाल। यह हदिया तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ। जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था, वैसे ही हमारे दरमियान हाज़िर हो। रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर ज़ाहिर कर। आइए से तो अपने रुल्स के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैं की भी तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए। क्योंकि तेरे वसीले से आई यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रिसाई होती है। खुदावन तुम्हारे साथ हो, अपने जलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावन मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक रज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। बिशप ऑफ रायबन के लिए, तमाम मसीही इदारों के लिए, दुनिया की तमाम माँओं के लिए, तमाम नर्सेस के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए, सेंट जॉन्स चर्च के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमदो ताज़ीम करते हैं और हमेशा ही तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस सबल आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममनून है। ऐ खुदावंद ताला तेरा ही जलाल है। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है। आलम वाला पर होशना। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आए आसमानी बाप, तू जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर। बीमारों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, हाज़िर जमायत पर रहम कर, हम सब के बच्चों पर रहम कर, पूरी आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। मेरी यादगारी में ऐसा ही किया आप। इसी तरह उसके बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। खुदावंद हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जीने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतज़ार करते हैं। ऐ मसीह तेरा ही जलाल हो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया है, हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। आए हम खुदावंद की मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदा, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं
बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं तूने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए आए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाहलुदा जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ की जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, आए खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, आए खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे के लिए इत्मीनान की दुआ मांगे और कहें कि खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको तसल्ली दे। खुदावंद का इत्मीनान मांगे। इत्मीनान के लिए लोग बहुत तगदो करते हैं लेकिन उन्हें इत्मीनान नहीं मिलता, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मैं और आप इत्मीनान पाते हैं और तसल्ली पाते हैं। हम खुदा के खादिम होते हुए इस वक्त आप सबको दावत देते हैं, आप बड़ी तरतीब के साथ आएँ, खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों और रूहानी ताज़गी हासिल करें। अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो आए सब मिलकर शुक्रगुजारी करें। कादर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज़ बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद में बतौर अपना फ़र्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है और हमें गुनाह है। हम उन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर है तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और अपने आप को, अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हजूर नज़र गुजरानते हैं ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारी माकूल इबादत है। हमें फ़ज़ल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूं तेरी नेक और कामिल मर्ज़ी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब कसों समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और रूह कुद्स के साथ वाहिद खुदा अब्दुल वाद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और ताकत अब्दुल वाद हमारे खुदा की हो। समझ से बिल्कुल बाहर है। तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सब के साथ, हम सब के तमाम अजीज़ कारब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, दुनिया की तमाम माओं के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए।